Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So we are here for a bridge course that is to enable you to have a link towards the IT, to have a route towards the IT. Okay. So in this whole week, you are going to have daily sessions. Today we are going to study about Google Sheets and Google Slides. So I request all of you to give the heading Google Sheets. Okay. Now we will see. I'm sharing my screen. If anyone is having any kind of doubt, so you can unmute and let me know, or you can chat, give your query in the chat box. So I hope my screen is visible to all. One very important instruction is that you have to rotate your screen. That means आप अपने phone को lateral पकड़िए, आड़ा कर दीजिए, so that everything will be visible enough clearly. So the today's agenda we are going to start up with is that we are first going to look, this is the syllabus. We are first going to study the installation of Sheets app. यानी आपको ये Sheet app किस तरह से install करना है, हम लोग पहले वो देखेंगे. After that introduction, after that how we are going to use the templates. फिर उसके बाद we are going to look for the creating of your first Google Sheet. Working with the data, कैसे sort करना है, what are the freezing and all those things, rows and columns को किस तरह से adjust करना है, then working with the cells are अलग, datas are also different, and all those things we are going to look. Then we will work with multiple sheets, and at the last we will see the formulas and sharing and export. So these are the whole content that we are going to study today. So let's start the very first step. So I request all of you to just write down the highlights, installation likho. And for installation, what you have to do is that you have to go to the, you have to go to the Play Store. And then here at the Play Store, you just have to type Sheets. ठीक है, शीट्स लिखो और यहाँ पे एंटर करो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग देखो यहाँ पर इट्स बीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम. तो आप लोगों को डायरेक्टली दिखेगा गूगल शीट ऊपर लिखा हुआ है एंड नीचे गूगल LLC. दिस इज द ऑथेंटिक ऐप दैट यू हैव टू इंस्टॉल. यहाँ पर आके सिर्फ आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है. इट विल हार्डली टेक अ मिनट and then you are ready with your sheet. After installing this app, what we have to do? So coming back, and then आप जब install कर लोगे तो it is going to appear on your screen. ठीक है, आपके screen पर आ जाएगा and this is the look and feel कि किस तरह से आपका app दिखेगा. तो सबसे पहले we will start with the look and feel. जैसे ही हम लोग वो app install करने के बाद उस पर click करेंगे तो आपको ये screen सामने आएगी. Now what are the things provided over here? देखो ऊपर वो जो 3 लाइन थी उस पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर दिखा रहा है कि what are the recent documents I have worked with. फिर उसके बाद share with me, start, offline, कि अगर हमने कुछ डिलीट किया तो वो bin में जाएगा. There are certain settings and Google Drive. So these are the important things. Here at the corner देखो छोटा सी T दिख रहा है. So that T is that means कि I have logged in through the tehrinmomin@gmail.com. So you have to be very particular कि आप कौन से. Yes. मैम मुझे वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है. Okay. So आपकी स्क्रीन just search my name and click on that. तो आपको स्क्रीन दिखने लगेगा. Rest other it is visible coming to the chat box. Kindly type if the screen is visible to everyone. हाँ दिख रहा है मैम. दिख रहा है? Okay, thank you so much dear. Okay, coming towards the Sheet app. So this is our Sheet app. Here are the number of things
recent shared with me started offline and all these instructions given over here. We just have to focus on the email ID, that is tehreermomin@gmail.com. So we are going to look this particular thing. आफ्टर दैट अगर हमको अकाउंट चेंज करना है तो हम नीचे वाला ले सकते हैं, GMM एग्जाम IT ले सकते हैं, तो विच एवर अकाउंट यू आर लॉग इन, आपका डिफॉल्ट वाला ही वो लेता है. द सेकेंड थिंग ओवर हियर इज दैट फोल्डर. अगर आपको गूगल ड्राइव के फोल्डर्स ओपन करना है तो यू कैन सेलेक्ट द गूगल ड्राइव. अगर आपको आपके फोन के स्टोरेज डिवाइसेस से कुछ फोल्डर्स ओपन करना है सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. सो दिस इज द ऑप्शनल थिंग. Now look at here, T के नीचे देखो यहाँ पर ऐसा ग्रिड जैसा दिख रहा है. Here if I am going to click, so it is going to give me as a list wise और as a grid wise. तो ये व्यू दिखा रहा है कि आपको ये सारे कंटेंट जो है वो किस तरह देखना है, एक लिस्ट की तरह देखना है या ऐसे ग्रिड की तरह. ग्रिड की तरह मतलब क्या, ऐसे बॉक्स में रोज एंड कॉलम्स में आ जाएगा. तो देखो इस तरह से हम लोग अपीयरेंस जो है वो चेंज कर सकती है. अभी अगर हम इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से आने लगेगा, एक के नीचे एक. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स. अच्छा, व्हाई वी आर यूजिंग गूगल शीट? तो गूगल शीट इज द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द गूगल जो आपको नंबर ऑफ डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है. वी कैन स्टोर 5 मिलियन सेल्स इन दिस पर्टिकुलर ऐप. इतना ज्यादा हम लोग को यहाँ पर डेटा के साथ स्टोरेज दे रहा है, एज वेल एज नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी इज गोइंग टू बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस शीट ऐप. मैथमेटिकल built-in functionalities, we can go for the graphing and the coloring of the part. We can look number of things, analysis of the data, sorting and listing. ये सारी चीजें हम लोग को गूगल शीट से मिलती है. दिस इज द गूगल वर्जन. और यू कैन से जैसे हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो एक्सेल वाज द बेस्ड ऑन ऑफलाइन कंटेंट. यहाँ पर वही चीज को इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द ऑनलाइन थिंग विद द अंडर द टाइटल गूगल. तो गूगल ने यही सारी चीजें हम लोग को ऑनलाइन के थ्रू प्रोवाइड कर दिया है, ऐप के थ्रू प्रोवाइड कर दिया है, और उसको नाम दे दिया है गूगल शीट्स. So it is very much similar to the Microsoft Excel. ठीक है, चलो let's start with the thing. अब सबसे पहले here how many rows and columns it has been provided. तो हम लोग को 1000 rows मिलती है शीट में और 26 columns है, that is A to Z. उसके बाद भी आप Z के बाद भी columns add कर सकते हो और rows और add कर सकते हो. इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे 26 columns है और 1000 rows है, तो 26 into 1000 gives you 26,000. तो एक सिंगल वर्कशीट में इतना सारा डेटा हम लोग इजीली डाल सकते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट आप उसके अंदर और ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एज पर योर चॉइस. So let's start. I'm having the एकदम right corner में below there I'm having a plus sign. So I'm clicking over here. Now it's giving me two options. Either I have to choose the template or either I have to go for the new sheet. So I will first show you कि template से क्या होता है. So we are going to use the template one. Now here the Google has provided a certain built-in template in order to help us. ठीक है, तो एक एज अ एक्स्ट्रा फीचर इसने दिया है कि आपको रेफर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे उसने छोटे छोटे टेम्पलेट्स डिजाइन करके दिए हैं. सो वी आर हैविंग दीज नंबर ऑफ टेम्पलेट्स. जैसे देखो ट्रैवल प्लान हुआ, देन वी आर हैविंग टीम रोस्टर, प्रोज एंड कॉन्स. 2 कॉलम में आपको नंबर ऑफ डेटा एंटर करना है. तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज द टेम्पलेट. अभी देखो जैसे यहाँ पर वर्क लिखा है, तो कोई कंपनी को इनवॉइस जनरेट करना है, किसी कंपनी को टाइम शीट बनाना है, तो वो ये दोनों में से कोई भी एक टेम्पलेट यूज कर सकता है. देन वी आर हैविंग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, एनुअल बजट प्लान करना है. तो ये सारी बिजनेस की चीजों के लिए हम लोग परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, एक्सपेंस रिपोर्ट रेडी करना है. So all these are the built-in features provided by the Google. Project management है, if you want to show certain chart, so we can go for the thing. Timeline वगैरह दिखाना है. Event management, if you want to go for the thing. अभी आते हैं हम लोग एजुकेशन की तरफ. वो सब तो सारे कंपनीज वाले थे, हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड यूज करेंगे, तो वी आर गोइंग टू चूज द एजुकेशन. अब एजुकेशन के अंडर में हम लोग को बहुत सारी चीजें दिया है. एक है अटेंडेंस, सेकेंड वन वी आर हैविंग इज द ग्रेड बुक,
थर्ड है असाइनमेंट ट्रैकर, ठीक है। तो इन फ्रॉम दीज थिंग आई कैन चूज एनीवन। तो चलो ठीक है, हम अटेंडेंस वाला चूज करते हैं एंड लेट्स सी कि व्हाट द गूगल इज प्रोवाइडिंग अस एज अ टेम्पलेट। तो लुक हियर, यहाँ पर वी आर हैविंग, ऊपर सबसे पहले देखोगे तो ABCDEFG पूरा दिख रहा है, तो दैट इज अवर कॉलम नेम। एकदम लेफ्ट साइड में वी आर हैविंग 1 2 3 4 है ना, लाइक दिस वे। तो ये सारा क्या है, ये रो का नाम है। तो रोज आर बीन नेम्ड एज विद द हेल्प ऑफ नंबर और कॉलम हैज बीन नेम्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स ABCD। तो ABCDEF ये जो हो गया आपका कॉलम हो गया, और 1 2 4 5 6 ये जो है ये आपके रोज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है क्लास नेम, तो क्लास नेम को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे एंड आई विल राइट ओवर हियर एज FYIT, ठीक है। तो ये सेल हमारा चेंज हो गया, देखो क्लास नेम की जगह क्या लिख कर आ रहा है, FYIT। स्टूडेंट नेम, अब स्टूडेंट नेम में आई एम गोइंग टू राइट योर नेम, सो आई विल जस्ट राइट रोल नंबर 1 आई एम हैविंग एज लाइबा, ठीक है। तो हम लोग लाइबा का नाम डाल देते हैं यहाँ पर। तो वी आर हैविंग द एंट्री विद द नेम एज लाइबा। फिर सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, तो जितने स्टूडेंट्स हैं हम लोग उनका यहाँ पर ऐड कर लेंगे सारे नाम। देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चूज द डेट एंड टाइम। तो हम लोग डिपेंड करता है, यहाँ पे 2000 दिया है तो हमको चेंज करना है, तो हम उसको 2020 बना सकते हैं, हम मंथ ईयर चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर फॉर्मेट आई वॉन्ट आई कैन डू दिस पार्ट एज एडिटिंग वाला, ठीक है। आज 3 तारीख है, 3/11/2020। तो आई हैव सेट दिस पर्टिकुलर डेट ऑल्सो, डेट सेट हो गई, ऑटोमेटिक ट्यूसडे आ गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइबा इज प्रेजेंट, लाइबा इज एब्सेंट, शी केम लेट। तो वट एवर द थिंग इज दैट आई कैन गो फॉर द चेंजेस, और देन वी आर डन विद द थिंग। फिर हम उसको सेव कर सकते हैं एंड देन वी विल बी बैक। तो दिस वॉज द थिंग, देखो यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड में ऊपर आ गया है अटेंडेंस। तो दिस इज द थिंग कि बिल्ड इन टेम्पलेट का ये फायदा है कि आपको हेड्स दे रहा है, यू हैव टू जस्ट चेंज दिस अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। कमिंग टू द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो, इज द थिंग क्लियर टिल नाउ? अब तक के सब समझ में आया? येस और नो, टाइप येस इफ ऑल द थिंग इज क्लियर। टेम्पलेट समझ में आया आप लोग को? Okay, Zainab says yes. Very good, Zainab. Thank you so much. Okay, Mariam Tuba, yes. Khushi, Insha, Rushda, Anam, Laiba. Okay, then we are having Kausar, Simran, then Meghna, Asira, and Bhavna, Ariba. Very good, girls. Okay, and Roshni. So thank you so much कि आप लोग को समझ में आया. So till now what we have studied? So we have studied installation part. We saw a little bit introduction of the sheet and we have studied the template. Clear? So I request all of you to type these 3 words: installation, introduction and templates. जल्दी जल्दी type करो. और आपको if you want you can write it down in your book also, not an issue. We have seen installation, introduction and templates. So I request you to write these 3 words and post it in our chat box. So that, very good Insha, the fastest one. Wow, good one. Installation, introduction and templates. Very good. Chalo, next we are having Zainab. Yes dear, very good. Thank you. Kausar. Yes, quickly, come on, hurry up. Today we are going to have very interesting things. So your involvement is very important. We will have a 2-way communications. If sunna nahi hai, you have to also respond. Very good. Yes, yes dear. Yes Anam. Thank you so much. Yes Laiba. Good, good. Bhavna, Meghna, Khushi. Yeah, good one. Very good dear. Roshni, Asira. Okay. ठीक है. तो अब तक के, अच्छा, now I will ask question. We will play a quiz. I'll ask you question and you have to type your answer. The fastest one will be the winner. Okay. So the very first question is that from where you are going to install the Sheet app? Sheet app आप कहाँ से install करोगे? Play Store. Yes, Anam. Very good. So Anam gave us the first answer and that's the correct one. Kausar, spelling पे थोड़ा सी ध्यान दो dear. No issues. Very good, very good. Okay. Second question. When you are going to go for the Play Store, which word you have to type?
प्ले स्टोर में जाके क्या टाइप करना है? वेरी गुड खुशी, वाओ। क्वेश्चन पूरा होने से पहले आई एम गेटिंग द आंसर। शीट्स, शीट्स टाइप करना है, एस एस लगाना है, शीट्स। ओके ओके, शीट टाइप करने के बाद विच ऑप्शन यू हैव टू चूज, कौन वाला शीट चूज करोगे? बहुत सारे आएंगे, आप शीट्स लिख दोगे तो प्ले स्टोर आपको बहुत देगा। वेरी गुड कौसर, गूगल LLC, दिस इज अवर ऑथेंटिक वन, गूगल शीट्स। ओके, गूगल LLC, वेरी गुड। आई एम हैविंग सो मच इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड डियर। ओके, अच्छा, how many rows are provided with these particular sheet app by default? Wow, Kausar, absolutely correct. Very good, Roshni, Insha, Anam, Rushda, Ariba. Very good, dear. Okay. Now, next question will be how many columns? 26 columns. One more thing I would like to add over here, rows or columns तो हो गए, total sheets जो है आपको वो 192 मिलता है। So I request all of you to type 192 sheets, ऐसा लिखो, ठीक है? अब ये 1 sheet, 2 sheet, 3 sheet ये क्या होता है? तो जब हम लोग मल्टीपल शीट्स का पढ़ेंगे then I will let you know। 192 sheets हम लोग को मिलती है। Okay, very good। अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेम्पलेट? टेम्पलेट क्या होते हैं? नाउ वेटिंग फॉर द आंसर। यस यस, टेम्पलेट्स किसको बोलते हैं या क्या होता है? एनीवन, यू कैन जस्ट टाइप इन, जो भी आपको समझ में आया है, व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड, यू कैन जस्ट टाइप द थिंग। बनी बनाई हुई चीजें, सो ऑलरेडी डिफाइंड पैटर्न है ना, राइट? ऑलरेडी प्री डिफाइंड पैटर्न गिवन बाय गूगल। सो टेम्पलेट्स आर नथिंग बट प्री स्ट्रक्चर्ड पैटर्न। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टाइप टेम्पलेट्स क्या है, तो इट इज अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बाय गूगल। चलो लिखो, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ, पहले से सजाया हुआ, पहले से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर वो लोग ने दे दिया है। व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमको हमारी जरूरत के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकती है। ओके, थैंक यू गर्ल्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ आई एम शेयरिंग द माय स्क्रीन, कमिंग टुवर्ड्स आवर गूगल ऐप, सॉरी मीट, सॉरी गूगल शीट। ओके, अभी वही हम लोग फिर से जाएंगे प्लस, नीचे राइट कॉर्नर पे देखो कलरफुल प्लस लिखा है, आई प्रेस दैट। अभी हम लोग ने चूज टेम्पलेट देख लिया, वी सॉ द अटेंडेंस का कैसा वो लोगों ने दिया था, वी हैव चेंज द नेम एंड ऑल दोस थिंग्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट। लाइबा का नाम हम लोग ने डाल दिया। नाउ सेकेंड वन इज द थिंग, आपको अगर खुद का स्ट्रक्चर रेडी करना है, खुद के हिसाब से शीट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग न्यू शीट पे क्लिक करेंगे। Look at the very first line, untitled spreadsheet, है ना? क्या लिख कर आ रहा है? Untitled spreadsheet। तो अभी तक ने हम लोग ने इसको सेव नहीं किया। We are having A, B, C, D, these are my columns and 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are my rows। तो ये rows और columns हम लोग को पता है, ठीक है? Now we will start कि अब क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे and we will look for work for the text. So the very first thing I'm going to write over here is that roll number। अभी हमको आप लोग का marks enter करना है, तो what I will do, then I will write your name, then for the third column what I will write your marks। ठीक है, ये तीन चीज हमको जरूरी है, तो ठीक है, ये तीन चीजें हमने डाल दी। सो दिस इज हाउ यू कैन एंटर द टेक्स्ट। जब आपका हो जाएगा लिखकर, तो राइट साइड पे देखो, यहाँ पे राइट क्लिक आ रहा है, राइट ऐसा बना हुआ है, राइट मार्क। तो 1, 2, 3 के नीचे एट द वेरी लेफ्ट कॉर्नर, सॉरी राइट कॉर्नर, तो आपको वहां पर क्लिक करना है। तो दैट मीन्स आपका यहाँ पर लिखकर हो गया। विच एवर सिर्फ ऑन द क्लिक, आप ऐसे कहीं पर भी क्लिक करते जाओ एंड इट इज गोइंग टू अलाउ यू टू राइट ओवर देयर। अभी सपोज हम यहाँ क्लिक कर दिए, तो यहाँ पर वो हमको लिखने देगा। तो आई विल राइट ओवर हियर हाई। So wherever you want, you can just click and you can just type it out। अगर हमको ये हाई नहीं चाहिए, तो what I will do, I will come here and I will do the backspace, remove हो गया, ठीक है? चलो
अभी रोल नंबर पे आते हैं, तो ऑलवेज रोल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, फिर एंटर प्रेस करेंगे, 2, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर 3, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अरे बाबा कितना एंटर प्रेस, वी आर हैविंग 1 2 3, अगर आई एम हैविंग 120 स्टूडेंट्स, so what I have to do? I have to go for entering each and every number? No. What I will do? I will just select these particular options, and how many numbers I want, I will select that particular field, single tap on my selected portion, और यहाँ पे क्लिक करना है ऑटो फिल। ऑटो फिल पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सारे रोल नंबर्स ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में, सीरीज में आपको वो नंबर्स दे देगा। So this is the built-in feature provided by the Google Sheet और Excel। दिख रहा है रोल नंबर सबको? So what I did, I will let you know again। 1 2 3 लिखा, सेलेक्ट किया, जहाँ जितना चाहिए उतना आपको पोर्शन सेलेक्ट कर लो। जब आप सेलेक्ट करोगे तो इट अपीयर्स इन ब्लू, और फिर क्या करना है, सिंगल टैप उसी के ऊपर क्लिक करना है और ऑटो फिल वाले पे क्लिक करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स वो प्रिंट करके दे देगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नाउ आई विल एंटर नेम। तो अभी व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर, हम यहाँ पे अभी सबका नाम तो नहीं लिख सकते, तो आई विल राइट A B C। हाँ, अभी वैसे ही हम यहाँ पे भी करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। अभी A B C D, हमने A B C तीन ही चीज लिखा है, ठीक है। अभी ये पूरा 15 तक के आई वांट द डेटा टू बी प्रिंटेड। नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस, नाउ आई विल क्लिक ऑटोफिल। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी देखो ABC रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ABCDEFGHI नहीं आ रहा है। So there is a different formatting for different data types। Integer है तो वो automatically digits है तो वो आपको automatically series देगा, लेकिन when we are having name और when we are having anything as a character तो वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे लाइबा का नाम हुआ, then second roll number we are having Batul Fatima, then we are having Shamim Kausar, then Bhavna, so these things I have to put manually। ठीक है। सो अगर अब वही यही तीन नाम रिपीट होना है तो आई कैन डू द थिंग एज ऑटोफिल। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मार्क्स, अब जल्दी से सबको मार्क्स दे देते हैं। तो मार्क्स आई विल सेलेक्ट आउट ऑफ 20, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लिख देते हैं, ठीक है। अब सबको सपोज यहाँ पर मिल रहा है, किसी को मिल गया 11, किसी को मिल गया 17, है ना, किसी को मिल गया 14, किसी को मिला 90, किसी को मिला 15, किसी को मिला 20। तो लाइक दिस वे आई कैन गो फॉर द मार्क्स एंड ऑल। अब यही इतने मार्क्स आई हैव टू रिपीट, तो व्हाट आई विल डू, ये इतना सेलेक्ट करके देखो कॉपी कट कॉपी क्लियर ऑप्शन आ रहा है, तो आई विल कॉपी इट एंड देन जहां हमको पेस्ट करना है वहां रखकर क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट, तो वही सारे नंबर्स क्या हो गए, पेस्ट हो गए। सो दिस इज द अनदर थिंग, कॉपी एंड पेस्टिंग द नंबर और द सेल और द डेटा, ठीक है। अब ये तीन पे भी हमको वही चीज चाहिए, तो अगेन आई विल सेलेक्ट दिस थिंग और हम लिखेंगे पेस्ट। तो देखो वो आगे के भी तीन ले लिए, अब ये तीनों हमको नहीं चाहिए, इट इज गोइंग बियॉन्ड 15, तो व्हाट आई विल डू, इनको सेलेक्ट करना है, सिंगल टैप करो और क्लियर कर दो, तो वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन गो फॉर एडिंग द थिंग्स। नाउ यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पर देखो रोल नंबर जो है एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है, सॉरी राइट कॉर्नर पे, बी वाला नेम जो है वो एकदम लेफ्ट में जा रहा है, फिर मार्क्स जो है वो इस तरह आ रहा है, सब इधर उधर भाग रहे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट माय कॉलम, लुक बिलो, एकदम नीचे देखो, हियर आई एम हैविंग 3 ऑप्शंस, either I have to align left, I have to align it in the middle, or I have to align it for the right part। So I will select and I will go for middle। तो आप लोग भी ऐसे कॉलम पकड़ना है और यहाँ से मिडल वाला चूज करना है, तो पूरे वैल्यूज आपके एक साथ किसमें आ जाएंगे, नंबर ऑफ इन द सेंटर, सारे के सारे सेंटर में अलाइन हो गए, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई हैव टू राइट ओवर हियर डेट, तो ठीक है हम लोग यहाँ पर डेट लिख देते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से फॉर्मेट में डालो, सपोज वी आर हैविंग टुडे एज 3, तो हम लोग 3, 11 और 2020 इस तरह से भी लिख सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट इट फॉर द सितंबर आल्सो। अब सारे बच्चों को मार्क्स तो एक ही दिन मिलना है, तो व्हाट
I will do, I will simply select this thing, सिंपल एक इसके ऊपर टैप देंगे और ऑटो फिल कर देंगे. नाउ ऑटो फिल करने से देखो क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबको अलग अलग दिन जा रही है, राइट? So I don't want this thing. So what I will do, I will do it like this. I will copy it and then यहाँ सेलेक्ट करके सारे जितने भी सेल्स में आपको चाहिए वहां पर सिलेक्ट करो और फिर पेस्ट कर दो. तो वी गॉट द सेम डेट ओवरऑल. क्लियर? इसको भी हम लोग सेंटर अलाइन कर देते हैं. देन वी विल गो टिल हियर. So this is what we have created, is our entering the text, autofill, date and times and all those things. Now I want roll number, name, marks and date should be bold. So look at my screen. At the bottom पे I am having several options. The very first option I am having size. अगर 10 की बजाय I have to select 14, तो देखो वो बड़ा हो गया. After that B is for bold. हम उसको bold कर सकते हैं. I is for italic. तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा italic. If I want, I can go for U. तो वो underline हो गया. If I want a strike mark, यानी वो कटना चाहिए, तो I will just press this strike mark. तो देखो सब कट गया. ठीक है? So like this way you can choose what you want. If I want to change the color, तो देखो here we are having text colors. तो आप लोग कोई सा भी color choose कर सकते हो. And under that also shades are available. तो आप कोई भी shade use कर सकते हो. ठीक है? देखो green. So we can go for any of the color, any of the contrast. So these are the features that are the built-in features provided by our sheet. Coming to the chat box. Coming to the chat box. Till here, all the thing is clear. Okay, center में कैसे करना है? Yes. What's your name, dear? The one who have asked, ma'am, center में कैसे करना है? I'll show you again. अभी तो हम 10 बार वही काम करेंगे. Yes, dear. What's your name? As it's showing me. Four times A, 3 times A. Okay. अच्छा, अब जब भी हम पूछेंगे, is it clear? चलो. Is all the thing clear? So what your response will be? क्या type करोगे? AC. चलो जल्दी से टाइप करो. if everything is clear or if you have any doubt, so you can post it in this chat box. Very good, Anam got my point. Look, yes, Tuba, very good. Laiba, Zainab, yes, good, very good. Okay. So now what we are having over here is that quiz time. Okay. Okay. Question number 1. How to recognize the column either with A, B, C, D or with 1, 2, 3, 4 like this way. How we are going to recognize our column name? A, B, C, D. Very good, Anam. Very good, Laiba. Insha, yes. Okay, then how to recognize the rows? Row को किस तरह से recognize करेंगे? A, B, C, D और 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yes, very good. Column or rows is clear. Okay. Whatever I have to enter, so I can enter it by using dash. अगर हमको कुछ enter करना है तो what I have to do? कहीं पर भी अगर कुछ भी लिखना है तो what I have to do? Very good, Zainab. By clicking on it. Yes, by clicking on it. कोई भी, or you can say by selecting the cell. वो cell को select करो और वहां पे लिख दो जो लिखना है आपको. Very good. Okay. If I want the digits, the integer value to be filled automatically. So for that, which option I have to? Very good, cursor. Which option I have to use? Autofill. Very good, smart student. I have got, mashallah. Good one. Very good. Okay. If I want the roll number to be appear in red color, so what I have to do? रोल नंबर बाय डिफॉल्ट जितने भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं बाय डिफॉल्ट उनका कलर ब्लैक होता है.
वेरी गुड अनम. टेक्स्ट कलर हम लोग क्या चेंज करेंगे? टेक्स्ट कलर को रेड करेंगे. वाओ, दैट मीन्स यू पीपल आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. Okay, then I will raise my level little bit and then we will move forward to the advanced topic. ठीक है, चलो, good one. Moving towards our sheet. Now what we will do? Now we will see all the datas and the number of columns and the things. So this is my column number A. Now, okay, chalo, I'll select column number D. I'll click on it. Now see what are the options I'm having. Cut, copy, paste, paste is special, autofill, clear and delete. तो कट कॉपी पेस्ट ये सारी चीजें हम लोग देख लिए. पेस्ट स्पेशल इज इन द सेम फॉर्मेट, इट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड. तो लेट्स सी, कॉपी किया हमने यहाँ पर. देन आई विल कम ओवर हियर, आई विल कम एंड पेस्ट स्पेशल. अभी पेस्ट मैम स्पेशल में, यस मैम, your skin is not, we can't see your skin. Ma'am, your Okay. screen is not visible. Okay, fine. I'll share it again. Not an issue. Thank you so much for informing. Okay, now is it visible? You share it. Yes, ma'am. Okay, chalo, I got the point. Chalo, start sharing. Now here. Okay, now you will see, is it visible? Paste specials दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay, thank you. What's your name, dear? Meghna. Meghna. Thank you, Meghna, so much. Okay, so look here, we are having paste special. आपको सिर्फ value paste करना है. जिस format में हमने लिखा है उस format में सारी चीजें paste करो, but border नहीं paste करो. कॉलम विथ के हिसाब से. तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सेलेक्ट दिस. तो हम लोग फॉर्मेट वाला ही लेंगे एंड वी कैन गो फॉर द पेस्ट ऑप्शन. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर सिंपली क्या करना है, वी जस्ट हैव टू कॉपी एंड डू द पेस्टिंग पार्ट. नाउ व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? ऑटोफिल तो हम लोग देख चुके हैं. क्लियर, तो हम जैसे ही इसके ऊपर क्लियर करेंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा. If I want this particular cell to be deleted, so what I have to do, I just have to click on delete. So the cell goes. Then if I want this particular mark, so what I will do, what are the other things? So यहाँ पर देखो, अब now we are having sorting. A से Z sort करना है, Z से A. Yeah, that means increasing order or decreasing order. I have to freeze, I have to hide, I have to resize, or I have to go for the grouping. So let's see one by one. If I'll go for A to Z, that means small to big. तो देखो all the 11s come, then all the 14, फिर 15 वाले आ गए, फिर 17. उसी तरीके से आपका A वाला कॉलम भी चेंज होगा and also it is going to affect your B वाला. ठीक है, okay. Then here we are having C. Now I will again do and I will go for the sorting. अब हम Z to A लेते हैं. So look at the changes at the column. The 20s come up, फिर 19, फिर 17, then 15, then 14. So this is the sorting. That means if with respect to C, if I want, so I can go for column A, I can go for column B, whatever you need to sort, you can go for that. The next we are having is that freeze. अभी freeze करने से क्या होगा, ये कॉलम छुप जाएगा और अटके रहेगा. That means यहाँ पे वो freeze हो गया, वो मार्क्स पक्के हो गए हैं. Now no one can change it. If I don't want this freeze, तो हम क्या कर देंगे, undo कर देंगे. ऊपर देखो at the top we are having a back arrow, ऐसा arrow बना हुआ है, तो that is for undo and that is for redo. Then next option we are having is that let's see hide column. तो hide column पे करेंगे तो देखो गायब हो गया. C A we are having B and we are having D. C वाला is missing. तो C वाला is over here. ये छोटे से black arrow दिख रहा है यहाँ पर. तो यहाँ छोटे से जगह पर वी आर हैविंग सी. देखो वो एरो पे क्लिक करोगे तो आपको सी आ जाएगा. देन नेक्स्ट ऑप्शन व्हाट वी आर हैविंग इज रीसाइज कॉलम. तो इफ यू वांट तो हम यहाँ पर पिक्सल की साइज देकर उसको रीसाइज करके सेव कर सकते हैं, या तो आई राइट फिट टू डेटा और सेव. तो वो कॉलम जो है जितना डेटा आपने लिखा है वो हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, आई विल डू अनडू और आप लोग देखो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. ठीक है, ये देखो ये स्पेस बढ़ गई और आप लोग इस तरह से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. ब्लू लाइन सबको दिख रही है, तो उतना कॉलम आपका जो कॉलम है उतना चौड़ा हो जाएगा. देखो लाइक दिस.
अब यहाँ पे हम फिर से आपको बताते हैं कि रीसाइज कॉलम फिट टू डेटा, तो यहाँ पर सेव किए तो देखो कॉलम जो है वो छोटा हो गया. So like this way we can manipulate the thing, we can adjust the thing as per our requirement. Last wala is grouping. Now what I will do, I will click over our column and then go for and we will select grouping. तो यहाँ पर what will happen, C को group किसके साथ करना है? If you can look here, तो C के ऊपर देखो एक एरो निकला और B के पास आ रहा है, B के ऊपर एक माइनस साइन है. So I have to group the marks with the name. So I will select this particular thing. Now what will happen? A वाला column is there, B वाले के ऊपर देखो I am having plus. Whenever I am going to click plus, तो ये हमको C दिखेगा. That means C has been grouped with the column B. ठीक है, तो दोनों कॉलम हमारे क्या हो गए, एक साथ आ गए, ग्रुप हो गए कि जब भी नाम आएगा तो नाम के साथ हमको क्या चाहिए, उनके मार्क्स चाहिए. अदरवाइज आई वांट जस्ट अभी सामने दिखाना है तो आई विल शो कि हाँ रोल नंबर है और सब बच्चों के नाम है. लेकिन व्हाट विल हैपन कि इफ आई वांट टू सी नेम और मार्क्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स जिनका नाम है, देन आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, हमको दिखेगा फिर हम उसको छुपा सकते हैं. गेट इट? सो दीज आर द एक्स्ट्रा ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट to column. Coming to the chat box, and let me know if all the things related to column is clear or not. So what you have to type? If all the thing is clear, then what you will type? Very good, Rushda. AC, that means all the thing clear, all clear. Very good, Kushi, Laiba, Anam. Yes, we are having 2 Anam. Insha, yes, good one. So all clear. Chalo, quiz time. Question number 1. If I want to arrange from A to Z or Z to A, so this concept is called as what? Very good. Sorting or sort. Very good. Okay. If I want, question number 2, if I want the column not to be moved, it should be placed where it is and no other one can change it. So what I have to do? Very good, freeze. Exactly. Okay. If I want, Laiba should not see my column of marks. So हमको क्या करना पड़ेगा? What I have to do? Hide. Very good. I'm sorry, Laiba, if you are in. और भी नाम रुको हम पकड़ते हैं अभी तुम लोग के. Okay, fine. I'm having many names. Good. Okay. Now I want column D to be a part of column A. So what I have to do for that? Column D should be a part of column A. यानी अगर हमको, very good, grouping, very good. Okay. So till now again, which are the topics we have covered? So we have covered installation, introduction, templates. We have created our own sheet. And we have looked in for all the columns. The next topic, coming towards the next topic, let me share my screen. If the screen is not visible, then let me know. Okay, let me share. Okay, fine. Okay. So I can go for a number of things. If I want to remove this thing, what I will do? I will go here and ungroup. तो क्या हो गया? C ungroup हो गया. ठीक है, चलो. Now if I want to add a roll number after 7, so what I will do? I will insert. So yeah, this can be done with the help of 2 ways. So look at the screen. सबसे ऊपर टॉप पर देखो प्लस की साइन बनी हुई है. ठीक है, so यहाँ पर प्लस की साइन क्लिक करने पे आपको पूछेगा कि इंसर्ट करना है रो अबव और बिलो. I will select one row above. तो एक रो यहाँ पर हमको मिल गई in which I can write whatever data. अगर हमसे कुछ मिस हो गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं. And suppose what I'll have to write, I'll write over here 15 तक के था ना, तो I'll write 16. फिर हम यहाँ पे लिख देंगे Z, क्योंकि ABC we are having, तो हम लोग यहाँ Z लिख देते हैं और इसको मार्क्स मिला है 20 out of 20. तो like this way I can fill up the data. ये वाली न्यू एंट्री हम लोग की आ गई.
सेम थिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट की। नीचे देखो एकदम लास्ट में जहाँ पे 10 बोल्ड वगैरह हम लोग देख रहे थे, आई इटैलिक है ना, उसी के लास्ट में देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्लस एंड दिस प्लस, एक रो ऊपर एक रो नीचे। तो जिस सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे आपको क्लिक करते जाना है और नंबर ऑफ रोज जो है वो ऐड होती जाएगी। क्लियर? तो दिस इज फॉर एडिंग रोज। उसी तरीके से अभी नाउ व्हाट आई वांट, नेम से पहले आई वांट सर्टेन थिंग टू बी एडेड एज अ कॉलम, तो हम वही करेंगे, प्लस पे जाएंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट में ऐड करना है या राइट में, तो आई विल सेलेक्ट लेफ्ट और राइट एंड देन आई कैन डू द एडिटिंग व्हाट एवर आई वांट, आई कैन गो फॉर द थिंग। यहाँ पे हम इजीली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी आर हैविंग, वी कैन राइट हियर एज सरनेम, so you can go for the thing, ठीक है। तो लाइक दिस वे, अभी यही चीज को अभी सरनेम के, अभी व्हाट आई विल डू, अभी हमको यहाँ पे डालना है नेम और मार्क्स के बीच में कॉलम। सो व्हाट आई विल डू, नीचे देखो आइकन एकदम लास्ट में कोने वाला, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ओवर दिस थिंग, सॉरी, आई विल क्लिक ओवर दिस थिंग, प्लस साइन सेकेंड लास्ट वाला। तो ये क्या होगा, जो सेलेक्टेड सेल है उससे पहले और उसके बाद में आपको क्या करेगा, वो कॉलम ऐड करके देगा लाइक दिस वे। तो जितने भी एक्स्ट्रा आएंगे हम लोग उसको इजीली पकड़ के डिलीट, सिर्फ सेलेक्ट करना है, यहाँ आना है, डिलीट, सेलेक्ट करना है, सिंगल टैप एंड डिलीट। यस यस डियर, स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहे। ओके फाइन, लेट मी शेयर इट अगेन, start sharing, okay, now is it visible, sheet दिख रही है? Yes Bhavna, Meghna, who responded me? यस मैम दिख रहा है। Okay, thank you dear. So what we did is adding and deleting columns, ठीक है, rows और columns को कैसे add करना है और किस तरह से delete करना है, तो बहुत simple है। Yes, okay, coming, is the screen visible? Just let me know. Yes, ma'am, it is visible. Okay, thank you dear, thank you so much. Okay, so what we have to do, simply हम लोग को यहाँ प्लस वाले आइकन पे जाना है, insert one row to the left right, जैसे भी कॉलम ऐड करना है we can do that, और else at the bottom we are having shortcuts, तो हम लोग वो shortcuts पे क्लिक कर सकते हैं and we can have, कुछ दिखाई नहीं दे रहे। dear there is a mistake from your side, leave the meet and rejoin again so that you can, the screen will be visible to you, okay. Rest other students are, it is very visible for them. Okay, we will wait for her as she rejoins. जब तक कि हम लोग delete वगैरह करते हैं, we are going to do designing or enhancing our content, ठीक है? Okay, now surname भी हमको नहीं चाहिए, तो what I will do, I will just click on it and delete. So it is going to be deleted. So the only thing I am having is roll number, name and marks, and for the 15 students. So these are my selected entries. So इस तरह से आप select कर सकते हो. If I want, I can change the color of every cells. So like this way, I can change the color. If you want the heading to appear with different color, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसके लिए different color choose कर लेते हैं. So we can make a colorful sheet with the help of this thing. Okay, if I want to give a border, so what I will do, I will select the part, so half part हम select करते हैं, and I will see how I can give the border. So here I am having, look at the very top, I am having A और उसके 3 dash lines है. So here we can set for text and we can set for cells. So we will see for text के लिए क्या है, तो हम लोग ने already ये सारी चीजें shortcut में देख ली है, bold है, italic है, underline है, स्ट्राइक वाला है ना, ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन। अगर आपको साइड में अरेंज करना है तो ये साइड में हो जाएगा, मिड में चाहिए तो मिड में हो जाएगा, इफ यू वांट इट टू बी राइट अलाइन तो वो राइट अलाइन हो जाएगा, अगर आपको इसको सेल्स के एट द टॉप पे चाहिए तो वो ऊपर जाएगा, यू वांट इट इन द मिड तो इट विल बी प्रेजेंट इन द मिडिल। फिर साइज है 14, इफ यू वांट यू कैन, आप इस तरह से इंक्रीज कर देते हो, देखो स्क्रीन पर बड़ा हो गया, अभी हम वापस इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। So like this way we can play with the thing. If you want, you can change the color. Then font.
अभी फॉन्ट देखो, एरियल बहुत हो गया, देन आई विल गो फॉर कॉमिक्स मैन, तो देखो चेंज हो गया फॉर्मेट. तो इस तरह से वी कैन गो. इफ आई वांट आई विल चूज द इम्पैक्ट वन, so it is going to change the font of the thing. Then उसके बाद text rotation. Now I want मैम it all to be in a, yes dear. मैम वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे कुछ. अच्छा, तो आप हमारा नाम ढूंढो और जहाँ पे भी हमारा नाम है उसके ऊपर क्लिक करो, तो फिर आपको स्क्रीन दिखेगी. सर्च फॉर मोमिन Yes, तहरीन ma'am. एंड क्लिक ऑन दैट. ठीक है. Rest other student, is it clear? Is it visible to other student? Yes, Anyone ma'am. can Yes, answer? ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. जल्दी से म्यूट कर दो. ओके, चलो. इफ यू वांट, हमको थोड़े सब टेढ़े चाहिए, टिल्ड अप, तो आई विल सेलेक्ट दिस वाला. तो देखो कैसे हो गए ऊपर. फिर आई वांट दिस थिंग टू बी टिल्ड डाउन, सबका मुंह नीचे चाहिए, तो बट आई विल चूज दिस वन, तो सब टेढ़े हो गए. तो लाइक दिस वे एक एक सिंगल सेल हम लोग उसको स्टैक वर्टिकली भी कर सकते हैं और रोटेट अप भी कर सकते हैं. टेढ़ा जिस फॉर्मेट में आपको घुमाना है उस फॉर्मेट में आप घुमा सकते हो. और इफ यू वांट तो आप ये एंगल भी चेंज कर सकते हो, राइट. अगर कुछ नहीं चाहिए तो नन करो और वापस आ जाओ. सो दीज आर द टेक्स्ट रोटेशन. इफ यू हैव पुट इन सर्टेन थिंग और आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर फॉर्मेट करो. जो बेसिक हमारा डेटा एंटर हुआ था सेम उसी फॉर्मेट में आ जाएगा. तो हाफ वाला वी आर हैविंग इन द अनफॉर्मेटेड वन, और ये बी यहाँ से देखो 8 नंबर से we are having the formatted one. So these are the features provided by the Excel. ये हम undo कर दिए, ये हम redo कर दिए. तो these are the features provided by our Excel. ठीक है. Coming to the chat box. Is everything clear to all? So what you will type? Okay, thank you so much. Quiz time. चलो, let's play a quiz. If I have to change the size of my text, so what I have to do? Font, very good. Font size, select size, okay. Acha, I want the heading to be in bold format. So what I have to do? क्या क्लिक करोगे? सिंपली बोल्ड वाला बी, सिंपली बी क्लिक करोगे. वेरी गुड. ओके, फाइन, गुड वन, गुड वन. ओके, बाकी तो सब आपको आता ही है. ओके, वन मोर थिंग. चलो, कमिंग टूवर्ड्स, कमिंग बैक, लेट मी शेयर इट अगेन. इफ द थिंग इज ओके, इट्स ऑलरेडी स्टॉप एंड आई विल शेयर अगेन. Okay, look here, one more interesting thing we can have. Now after all this thing, what I will do, at the top I will write, I will insert one row above, one row above and one more row, 2-3 rows. ठीक है. Now I will write in the first text as welcome to the information technology field. राइट. अभी हमने लिख दिया. अभी देखो वो बी कॉलम में भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है ना, पूरा. वो ए को बिलोंग कर रहा है, बी को कि सी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो व्हाट आई विल डू, ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्टेड है. ऊपर ये 3 एरो वाला जो है हम वहां पर जाएंगे. आई विल गो फॉर द सेल एंड आई विल डू दिस थिंग, wrap टेक्स्ट. इसको ऑन कर देंगे. जैसे ही इसको ऑन करेंगे व्हाट विल हैपन, ये पूरा की पूरा ए कॉलम में आ गया. So this is known as wrapping of the data, wrapping of the text in a single cell. अगर I want this to be appear as a main heading for column A, roll number, name and marks. So what I will do, I will select this particular cell. ये तीनों को select करेंगे और नीचे देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक highlighted है, that is for unwrapping. तो वापस से unwrap हो गया. नेक्स्ट भी इसके बाजू में देखो ऐसे 2 एरो दिख रही है कलर के डब्बे से पहले. तो हियर आई विल क्लिक, तो ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. दैट मीन्स तीनों कॉलम मिल के एक ही कॉमन हेडिंग आ रही है. मैम, इफ आई वांट आई कैन फिल द कलर. यस मैम,
यस मैम यस ये फिर से दोबारा बोलिए ना, ए वाला मैम आप जो बता वो रहे आपने कैसे किया, नीचे कैसे किया रोल नंबर, हियर। नेम और मार्क्स को? वो ओके फिर ओके से फाइन बताए फाइन ना। फाइन। हाँ ये रोज एंटर करना है एकदम लास्ट में। ओके थैंक यू सो मच। देखो ये जो भी सपोज हमने रोल नंबर, आई डू ऑल द थिंग्स अगेन, नो वरी। देखो सब अंडू कर दिया। ये हम लोग की शीट है, रोल नंबर है। रोल नंबर के ऊपर आई वांट द रोज टू बी एडेड, तो हम लोग ये प्लस वाले सिंबल पे जाएंगे और इंसर्ट वन रो अबव, ये कर सकते हो। सेकेंड वे इज दैट एकदम नीचे जो लाइन से दी है ना 10BIC, उसके एकदम लास्ट में जाओ, तो देखो प्लस की साइन है एंड नीचे लाइन है, तो सेकेंड लास्ट वाला हमको प्रेस करना है। अगर ऊपर चाहिए तो सेकेंड लास्ट वाला, और अगर नीचे चाहिए तो लास्ट वाला, इस तरह से। ठीक है, तो लाइक दिस वे 3-4 लाइन्स कैन बी एडेड। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट लिखेंगे वेलकम वाला। ओके अगेन वेलकम टू द इंफॉर्मेशन। द थिंग इज दैट अगर कंटेंट सेल से बड़ा हुआ तो वो चीज बता रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, हेलो मैम। ये लिख दिया। यस मैम स्क्रीन नॉट विजिबल। व्हाट्स योर नेम डियर? मिसबा अंसारी। ओके मिसबा, आपने वापस मीट लेफ्ट करके वापस आए, आप रीज्वाइन किया? रेस्ट अदर द स्क्रीन इज विजिबल टू अदर्स। यस मैम। ओके देन मिसबा आप लीव करो एक बार और फिर से रीज्वाइन करो। ठीक है, और या तो हमारा नाम जहाँ आ रहा है वहां पर टैप करो तो आपको दिखेगा। ओके सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, वेलकम टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड। अब यहाँ पर देखो ये बी में भी चला गया है, सी में भी, लेकिन कंटेंट है किसका? ए का। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट दिस ए वाला सेल, A1 सेल। वी विल गो दिस 3 लाइन, वो जो 3 लाइन आई है उसके बाद ये सेल वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर क्या चूज करना है? टेक्स्ट रैप। जैसे ही टेक्स्ट रैप करोगे ऊपर देखो आपका वो पूरा की पूरा ए वाले सेल में आ गया। so this is text wrapping, first way. second way is that now look at the bottom line, एकदम आखिरी लाइन देखो कौन सा हाईलाइटेड है, ग्रीन ग्रीन वाला कौन सा है? so this is already text wrap. अब अगर उसी पे हम क्लिक कर देंगे तो वो अनव्रैप हो जाएगा। फिर से व्रैप करना है तो फिर से हम वो ग्रीन वाले पे प्रेस करेंगे और फिर से वही वाले आइकन पे प्रेस करेंगे, फिर से व्रैप हो गया। अब अनव्रैप करना है तो वो हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड वाले को ही सेलेक्ट करेंगे। तो वो क्या हो गया? अनव्रैप हो गया। सो नाउ इट इज क्लियर व्रैपिंग एंड अनव्रैपिंग। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जिंग। अभी हमको क्या करना है, ये A B C तीनों को एक ही कॉलम बनाना है। तो व्हाट आई विल डू फॉर दिस, अगेन ये साइन पे जाना है, सेल वाले पे जाना है एंड देन वी आर हैविंग मर्ज सेल, तो इसको ऑन कर देना है। तो देखो A और B के जो बीच की लाइन थी वो हट जाएगी, B और C के बीच की लाइन हट जाएगी और पूरा एज अ सिंगल कॉलम आपको मिल जाएगा वेलकम टू द IT फील्ड। अगर ये हम बंद कर देते हैं तो वो सेपरेट सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये एज अ कॉमन एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। कमिंग टू द चैट बॉक्स, लेट मी नो इफ द wrapping and merging is clear to everyone. Yes, okay, thank you dear. मिसबा यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर स्क्रीन का, तो आप हमारा नाम चाहे वहां पर टैप करो तो आपको स्क्रीन दिखेगा। सेकेंड वे इज दैट अगर आपका नेटवर्क इशू है तो प्लीज कम टू द नेटवर्क एरिया। थर्ड से आप मीट को एग्जिट कर दो, लेफ्ट कर दो और वापस से उसी लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लो। ओके यस फाइन, मैम। थैंक यू। यस। ओके चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी विल सी मल्टीपल शीट। ठीक है, ये एक शीट पे काम कर लिए, ये इतना बस हमको हो गया, बस बाबा बहुत ज्यादा कचरा नहीं करना है। तो व्हाट आई विल डू, ऊपर देखो टाइम लिखा है 10:59, उसके नीचे एक राइट एरो दिख रहा है आपको, राइट टिक मार्क ग्रीन वाला, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो हमको बता रहे कि ये इतनी शीट है, आपका शीट का नाम जो है वो एज अ शीट 1 दिया है। अब लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर एकदम नीचे शीट 1, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, हम इसको डुप्लीकेट
कर सकते हैं, आई कैन गो फॉर द रीनेमिंग। तो रीनेमिंग में हम लिखेंगे FY1, ठीक है, डन। तो देखो यहाँ पे आ गया FY1। अब हमको और भी शीट्स ऐड करना है, तो व्हाट आई विल डू, लुक एट द राइट कॉर्नर, एकदम राइट में कोने में देखो प्लस की साइन दिख रही है, वो प्लस की साइन पे क्लिक करो, तो देखो शीट 2 आ गई। फिर प्लस के साइन शीट 3, देन अगेन वी विल प्लेस ऑन प्लस। तो जितना प्लस करते जाओगे इस तरह से आपको 192 शीट ऐड करने देता है ये पर्टिकुलर गूगल शीट ऐप। क्लियर है? अभी वी विल सेकेंड वाले को हम रीनेम करना चाहते हैं, सेकेंड वाला हमको नहीं चाहिए, चलो तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट। तो पूछेगा आर यू वो श्योर यू वांट टू डिलीट, तो आई विल से ओके। तो वो शीट वाली चली गई, अभी 3 बची और 4 बची, ठीक है। अभी 3 वाले पे आते हैं हम लोग, रीनेम। तो रीनेम हम लोग देख चुके हैं, हाइड करना है तो हम लोग हाइड कर सकते हैं। दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, टैप कलर। तो हमको चाहिए कि वो एकदम दिख के आना चाहिए, तो आई चूज द कलर एंड आई गो बैक, ठीक है। फिर उसके बाद लेट्स सी, तो देखो शीट FY के नीचे कोई भी लाइन नहीं है, लेकिन शीट 3 के नीचे रेड कलर की लाइन आ गई है, तो दिस इज नोन एज टैप कलर। देन वी आर हैविंग शीट 4। नाउ व्हाट आई वांट शीट 4 टू अपीयर फर्स्ट, फिर शीट 3, फिर FY, यानी रोटेट, घुमाना है। तो हम ये शीट के ऊपर शीट 4 को दबाएंगे और इसको उठाकर व्हाट आई विल डू, आई विल रोटेट इट ओवर हियर। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली मूव द शीट, सॉरी लेट मी वर्क दिस थिंग, वी कैन मूव द शीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कैसे कि एक शीट जो है हमारी यहाँ से वहां जा सकती है, और वी कैन गो फॉर विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग मूव लेफ्ट। तो वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर आ गई मूव लेफ्ट। फिर वापस यहाँ पर गए, देन आई विल, अब वो पूछ रहे लेफ्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए, नहीं बाबा आई वांट इन लेफ्ट। तो देखो शीट 4 पहले आ गई, फिर FY वाली शीट आ गई, फिर शीट 3 आ गई कलर वाली। अब FY में जो डेटा है वो सेम की सेम हमको उठाना है और उसको दूसरी जगह डालना है। तो व्हाट आई विल डू, मेक अ डुप्लीकेट। तो देखो जैसे ही डुप्लीकेट बनाएंगे वो क्या लिख कर आ रहा है, कॉपी ऑफ F1। तो यहाँ पे F1 की शीट का डेटा तो है ही है, और यहाँ पे कॉपी वाला आ गया। तो व्हाट आई विल डू, ये कॉपी का हम कलर बदल देते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। ओके फाइन, देखो तो ये कैसे हो गया, कॉपी FY का सेम कंटेंट उठ के FY1 का सेम कंटेंट उठ के पूरा की पूरा कॉपी ऑफ FY1 में आ गया, लाइक दिस वे। अब आपको इसको रीनेम कर दो, अब हम लोग इसको रीनेम करके और कॉपी हटा देंगे और क्या लिख देंगे, FY2। तो इस तरीके से पूरा कंटेंट, पूरी शीट का कंटेंट उठ के यहाँ आ गया, सेम वही कंटेंट यहाँ पर भी है। तो लाइक दिस वे दीज आर द वर्किंग विथ मल्टीपल शीट। अच्छा, अभी सिर्फ हमको ये ऊपर का पार्ट चाहिए, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, सिर्फ इतना डेटा चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस थिंग और फिर हम जाएंगे शीट 3 में और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो दैट मीन्स मूविंग डेटा फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट। एक FY2 का डेटा उठाया, FY शीट 3 में डाल दिया। तो सिंपली कॉपी पेस्ट करना है और शीट में घूमते रहना है। कमिंग टू द चैट बॉक्स, लेट मी नो if the sheet multiple sheets concept is clear to everyone. Acha, now I'll ask certain general questions. Have you people aware of these Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint? पहले पढ़ा है, आप लोग को आता है ये सारी चीजें? ओके, लाइबा ने नहीं पढ़ा है स्कूल में डियर। स्कूल में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ओके सो मेनी यस, हाँ ठीक है, ओनली ओके ओके फाइन ओके। तो ओके मैम, यस मैम पढ़ा है। ओके, गूगल शीट पढ़ा था आप लोगों ने, किसी गूगल शीट के बारे में किसको किसको पता है? नहीं पढ़ा, ओके फाइन, नहीं, ओके नो, ओके इंशा को पता है, वेरी गुड इंशा, ओके फाइन। तो अभी आपको कुछ भी डाउट रहेगा ना तो इंशा को पूछ लेना। ओके फाइन, थैंक यू डियर, ठीक है। अच्छा अच्छा, वन मोर थिंग आई हैव टू आस्क, अब तक के हाउ मेनी टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, चलो जल्दी से। वी हैव सीन इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद समरी, जस्ट अ क्विक रिव्यू। इंस्टॉलेशन पार्ट देखा, इंट्रोडक्शन,
टेम्पलेट्स, क्रिएटिंग योर ओन शीट, फिर कॉलम के अंदर चेंजेस, है ना, फिर रोज एंड कॉलम, फिर हम लोग सेल के अंदर चेंज किए, और फिर मल्टीपल शीट. तो इफ यू हैव एनी डाउट टिल हियर तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, ओके. ईफा, व्हाट हैपेंड डियर? मैम थोड़ा बहुत, अच्छा थोड़ा बहुत आपको पता था. ओके, shall I ask question? 1-2 questions based on multiple sheets. Okay, Kausar is always ready. Very good, Kausar. What about others? Yes, replies please. Very good. Okay, question number 1. Let's see who's going to reply the fastest one. If I want sheet 1 to be named as FY1, so what I have to do? Very good, Anam, very good. Fastest one to reply. Anam will see you or will give you some rewards. चलो वो last में देखेंगे क्या करते हैं. Okay, good. अच्छा, if I want all the data of sheet 1 as it is to be present in sheet 2, so what I have to do? Duplicate. Very good. अच्छा. What will be the name appear for the duplicate sheet? Duplicate sheet का नाम क्या आता है, कैसे appear होता है वो? Very good. Copy of. Yes, good one, good one. बहुत talented हो माशाल्लाह, सबको आ रहे answers. Okay, fine. Then, if I have to arrange the sheet, left, right, यहाँ arrange करना है, तो what I have to do? Which option I have to select? Move. Now Insha is the fastest one to reply. चलो इंशा को तो थोड़ा बहुत पहले से आता भी है. Yes, खुशी is also fast. जल्दी जल्दी में खुशी की स्पेलिंग ही मिस्टेक हो गई. Okay, fine. Okay, move left, right, move left, right. Yes, good dear. Okay. Now the very interesting part we are going to look here. So let me share my screen. The second last topic, then we are finished with this thing. ठीक है? तो चलो हम फिर से share कर लेते हैं. I will share it again. Share screen. Start sharing. Yes. Okay. Now what I will do? Sheet 3 में I am having these data. तो हम इसको rename करेंगे and I will write here as function. अब असल में एक्सेल शीट का जो मेन काम है जिस वजह से एक्सेल शीट यूज होती है वो ये है, बिल्ट इन फंक्शन. बहुत आसानी देता है. ठीक है, हम जल्दी जल्दी इनको मिड अलाइन कर लेते हैं. देखो मिड अलाइन के लिए क्या करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन. तो मिड में आ गया, फिर बी वाला कॉलम सेलेक्ट किए और उसको सेंटर अलाइन कर दिए, फिर मार्क्स पे गए और फिर से हम उसको क्या किए, सेंटर अलाइन कर दिए. आई वॉन्ट रोल नंबर नेम टू बी इन बोल्ड और उसकी फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सी हमको बढ़ाना है तो हम उसको 14 कर देते हैं. हो गया. आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू हियर, आई एम गोइंग टू राइट सर्टेन थिंग्स. ठीक है, जैसे कि हमको अगर ये सबका एडिशन करना है तो आई विल राइट सम, then we will calculate the average, then we will find out the maximum value, minimum value जो भी है, max min, ये easily हम लोग find out कर सकते हैं. और percentage निकालना है हमको. ठीक है, अभी एक एक बच्चे का percentage निकालते बैठेंगे तो it will take many of the time. So what I will do, I will use the formulas. So look here on the screen, sum. अभी sum किसका किसका करना है, तो what I will do, I will take this column and I will write over here as copy. ठीक है, ये कॉपी किया. अब यहाँ पर आते हैं A के पास. यहाँ पर what I will do, okay, now it is asking for me whether I have to paste it or all this options sorter ये करना है. Okay, let me remove the selection. Okay, first I will insert the column over here. तो एक कॉलम एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, where I have to get the thing. और ये जो रोल नंबर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और मार्क्स की एंट्री डाल देते, तो आपको सम और ये इजी जाएगा. ठीक है, ये मार्क्स जो है वो 10 में से मिला है. अब यहाँ पे जल्दी जल्दी फिल करना है. तो व्हाट आई विल डू, वन मोर थिंग, एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं. देखो ध्यान दो उधर, RAND.
सॉरी, फॉर्मूला जब भी आपको लिखना रहता है तो आपको इक्वल टू देना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे RAND, दैट मीन्स रैंडम नंबर। देखो 3 ऑप्शन आए हैं, रैंड, रेंड एरे और रैंड बिटवीन। तो आई विल सेलेक्ट रैंड बिटवीन। कितना नंबर चाहिए, 10 में से मार्क्स देना है तो 1,10। तो अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जितने भी फील्ड्स है सबके अंदर ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से रैंडम नंबर डाल देगा। तो 10 में से किसी को 9 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 7 मिला, लाइक दिस वे। तो ये ऑटोमेटिक नंबर आता है, ठीक है। तो दैट इज अवर फर्स्ट फंक्शन, रैंड बिटवीन, रैंडम बिटवीन। 1 से लेके 10 डाले तो ये उतने ही नंबर्स आएंगे। 1 से लेके 100 डालेंगे, सपोज अभी आई विल राइट हियर 100, तो वो क्या करेगा, 100 वाले मार्क्स सारे दे देगा 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। जैसे 87 आया, अभी ये सबको हमको क्लियर करना पड़ेगा एंड देन आई कैन अप्लाई द थिंग, ठीक है। और ये चेंज होते रहता है थोड़ा सी, यहाँ पर रैंडम नंबर्स जो है वो ऑटो फिल कर दिया। तो देखो 1 से लेकर 100 तक में आई विल चेंज दिस एज 10 की जगह 100। तो वी कैन डू दिस रैंडम नंबर। अभी हमको सम करना है 20 मार्क्स वाला और 100 मार्क्स वाला। तो आई विल गो हियर, आई विल राइट इन माई fx। fx मीन्स मतलब टेक्स्ट लिखो या फॉर्मूला लिखो। तो जब भी हमको फॉर्मूला लिखना है, हमको लिखना है इक्वल टू। उसके बाद विच थिंग आई हैव टू यूज, आई हैव टू यूज सम वाला। चूज द फर्स्ट वैल्यू, तो आई विल चूज दिस वन एंड चूज द सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द वे, सिर्फ क्लिक कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसको इक्वल टू क्लिक कर दिया तो आपको 20 + 75 गिव्स यू 95। एक बार फिर से बताती है, सेल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे fx पे आना है, यू हैव टू राइट इक्वल टू। जैसे ही इक्वल टू डालोगे देखो वो ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम। ऊपर देखो कितना आ रहा है, सम इफ, सम एफक्यू, ये बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस जो है दिया है। हम लोग अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ सम वाला चूज करेंगे। फिर वो बोल रहा है पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू चूज करो। तो हम ये पहली वैल्यू लेंगे 20, ओके, और यहाँ कॉमा देके हम दूसरी वैल्यू लेंगे और देन आई विल गो फॉर क्लोजिंग द ब्रैकेट। पहले हमारे से ब्रैकेट वो क्लिक हो गई, ठीक है। तो आ गया 108। फिर से एक बार और सेल सेलेक्ट किया, इक्वल टू पे गए, फिर यहाँ पे लिखा सम, यहाँ आ गया सम, वैल्यू सेलेक्ट किया, दूसरी वैल्यू सेलेक्ट किया और ये राइट मार्क पे क्लिक कर दिया। अब हमको नीचे के भी सारे चाहिए तो व्हाट आई विल डू, सेल को सेलेक्ट करके इसके ऊपर सिंगल टैब, ऑटो फिल, सबका सम आ गया। सेम वैसे ही एवरेज, ठीक है। तो इक्वल टू, सेल सेलेक्ट किए, ये किए, फिर AVG लिखे, एवरेज का देखो यहाँ पर आ रहा है एवरेज। और फिर आपको जिसका भी एवरेज निकालना है, सपोज ये तीनों सेल है, 1 2 3 वैल्यू, तीनों का एवरेज निकालना है तो वो तीनों का एवरेज निकाल के दे देगा, लाइक दिस वे, सिंगल क्लिक और फिल। तो सबका एवरेज निकल गया, किसका किसका, मार्क्स का, सम का, और मार्क्स 100 का और सम का। तो ये एवरेज आ गया। अभी आई हैव टू चेक कि मैक्सिमम वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सेल सेलेक्ट किए, इक्वल टू लिखे, मैक्स लिखेंगे और कौन से कॉलम का, ठीक है। तो ये रो वाइज भी जा सकते हैं, कॉलम वाइज भी। तो ये तीनों में से मैक्स कौन सा है, तो 46 है। फिर इसी तरह से ऑटो फिल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन, ये तीनों में से, सी में से, डी में से एंड इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। तो लाइक दिस वे वी आर गोइंग टू गेट द थिंग। समझा, दिस इज द सम, दिस इज द एवरेज, दिस जैसा मैक्स कैलकुलेट किया है वैसे हम लोग मिनिमम, ये हम आपको रो वाइज बताए हैं। अभी हम लोग कॉलम वाइज देखते हैं कि कॉलम वाइज कैसे पॉसिबल है। तो व्हाट आई विल डू, अगर 100 ये सारे का हमको ऐड करना है तो आई हैव टू राइट ओवर हियर, यहाँ जाएंगे, इक्वल टू करेंगे, सम लिखेंगे, ऊपर आ गया सम, और फिर वैल्यू चूज करने बोल रहे हैं। तो वी कैन हैव दीज वैल्यूज, ठीक है। फोन में आई हैव टू रोटेट दिस थिंग, और या तो हम यहाँ पर वैल्यूज डाल सकते हैं। तो लेट्स चेक कि हमारी वैल्यूज क्या है। तो दिस वैल्यू एंड सॉरी D5 D7 जितना भी चाहिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके, दिस इज हैविंग D3 से स्टार्ट करते हैं एंड वी विल गो फॉर D7 तक। तो इट इज गोइंग टू गिव मी D3, मतलब क्या, ये D वाले में थर्ड वाला। तो दिस इज माई सेल D3। D7 मीन्स व्हाट, 55।
ऊपर कॉलम देखना है और यहाँ से रो देखना है। तो आपके सेल की पोजीशन आपको पता चलेगी कि दिस इज बिटवीन D7 पोजीशन। तो D3 वाली पोजीशन ये हो गई, जहां पर कॉलम जो है वो D है और रो जो है वो कौन सी है, थर्ड वाली। तो दिस पर्टिकुलर सेल विल बी नोन एज D3। मैट्रिक्स पढ़े हो ना आप लोग, अभी दिस वाला विल बी नोन एज B4। sorry. So these are the built-in functions. Coming to the chat box, let me know if you are clear with all the formulas. थैंक यू सो मच। आप लोग को सेलेक्ट करने के बजाय अपने हाथ से लिख भी सकते हो, D3, D7, B4, B6, whatever you want, you can type it with your hand. ठीक है, ओके चलो, द लास्ट पार्ट दैट इज वी आर गोइंग टू लुक फॉर इज शेयरिंग एंड सेविंग। बहुत काम कर लिए एक्सेल में बाबा, बहुत सीख लिया, अभी बस हुआ। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग हमारा काम सेव करेंगे और हट जाएंगे। तो लुक हियर, व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट वी हैव टू डू। ये हमारी स्क्रीन है, सबसे ऊपर जहां 11, 16 लिखा है ना, उसके नीचे देखो राइट मार्क दिख रहा है, तो वहां पर हम क्लिक करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अनटाइटल्ड शीट दे रहे हैं, है ना। अब वो चीज रहने दो, कैसे सेव करना है दैट आई विल लेट यू नो। अभी इधर आ जाओ, बैटरी, हमारी बैटरी दिख रही है फोन की, उसके नीचे देखो 3 डॉट है। जैसे ही आपको 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो हियर यू आर गोइंग टू हैव मेनी ऑप्शंस। उसमें से आपको जाना है शेयर एंड एक्सपोर्ट। अभी शेयर एंड एक्सपोर्ट में क्या होगा, अगर हम ये शेयर पे क्लिक करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर प्रोवाइडेड बाय द गूगल कि आप अपनी स्लाइड, आप अपनी शीट, आप अपना गूगल डॉक्यूमेंट किसी और के साथ भी शेयर कर सकती है। अभी हमको यहाँ पे शेयर करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भावना का या मरियम का या आयशा का, किसी एक का ईमेल आईडी लिख के डन कर देंगे। तो ये शीट क्या हो जाएगी, उनके साथ भी शेयर हो जाएगी। ठीक है, अब वो लोग भी इसके अंदर चेंज कर सकेंगे। सेकेंड ऑप्शन वी आर हैविंग इज दैट लिंक शेयरिंग। लिंक शेयरिंग को हम ऑन कर देते हैं, देखो यहाँ पे ब्लैक में लिख के आ रहा है, अपडेटिंग लिंक शेयरिंग इज ऑन एंड लिंक इज कॉपीड। अभी हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ जाकर लिंक, कॉपी लिंक वाला ऑप्शन भी है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं एंड देन आई विल कम टूवर्ड्स व्हाट्सएप। और नुसरत मैम है तो ठीक है, चलो नुसरत मैम हमको, हम ये लिंक शेयरिंग दे देते हैं। तो व्हाट विल हैपन, नुसरत मैम ये क्लिक करेंगे और उनको हमारी एक्सेल शीट जो है वो मिल जाएगी। गेटिंग? तो दिस इज आवर सेकेंड ऑप्शन। और अगर आपको चेक करना है तो फिर से हम लोग जाएंगे शेयर एंड एक्सपोर्ट में, ये वाली लिंक पे जाकर। अभी देखो शेयर पे यहाँ पे टी के बाजू में ऐसा एरो ये बन के आ रहा है ना, अटैचमेंट जैसा वाला सिंबल, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो बताएगा कि एनीवन कैन व्यू, कमेंट, एडिट। तो हम नुसरत मैम को जो शेयर किया वो सिर्फ व्यूअर है, वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कमेंटर बना देंगे तो देखो अपडेट हो रहा है, वो हमको कमेंट करेंगे, गुड, बैड, वेरी गुड, लाइक दिस वे, सिर्फ कमेंट आएगा। और थर्ड वाला वी आर हैविंग एडिटर। तो अब एडिटर बनाने से क्या होगा कि नुसरत मैम वो शीट को चेंज कर सकते हैं। वो जो हम लोग ABCD और मार्क्स लिखे हैं, तो मैम क्या करेंगे, वो मार्क्स हटा के अपनी तरफ से दूसरा मार्क्स डाल सकेंगे। तो दीज आर द ऑप्शंस वी कैन गो फॉर द थिंग। ठीक है, अभी हम शेयरिंग वाला बंद करते हैं। तो कैसे बंद करेंगे, शेयर एंड एक्सपोर्ट पे गए और लिंक शेयरिंग ऑफ। देखो यहाँ पे दे रहे लिंक शेयरिंग टर्न्ड ऑफ, ब्लैक में आ गया। अब नुसरत मैम लिंक पे क्लिक भी करेंगे तो वो खोल नहीं पाएंगे, सॉरी टू से दिस बट इट हैपेंस लाइक दिस वे। ठीक है, अभी सेंड अ कॉपी, हमको ये भेजना है तो हम क्या करेंगे, एज अ PDF भेजना है, एज एन एक्सेल। देखो बाय डिफॉल्ट जो है एक्सेल फॉर्मेट में जाएगा। PDF बना के भेजने का, चलो PDF ले लो। ओपन फॉर्मेट में भेजने का, ओपन, एज अ वेब पेज। तो आपको जो फॉर्मेट में चाहिए, सपोज हम उसका PDF बनाते हैं, हम उसको ओके करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी ये जो स्प्रेडशीट है, अब वो पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ भेजना है, तो ठीक है हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं, नुसरत मैम को भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी काम किए हैं उनको एज अ PDF देखो आ गया। अभी मैम हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, PDF में हम लोग देखेंगे तो हमारा जो भी काम किया हुआ था एक्सेल शीट का, देखो हम लोग का ये डेटा जो था वो पूरा की पूरा मैम के पास चला गया है। ठीक है, सेकेंड पेज ये देखो हम लोग का कॉपी वाला, थर्ड पेज ये फॉर्मूले वाला, तो ये सारा डेटा उनके पास एज अ PDF चला जाएगा। क्लियर? चलो कमिंग बैक अगेन,
फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, फिर से शेयर एंड एक्सपोर्ट में गए। अब हमको कहीं भेजना उजना नहीं है बाबा, बस हुआ आई हैव टू सेव माई थिंग। तो अब हमको सेव करना है एक्सेल फॉर्मेट में। यस, हमको एक्सेल फॉर्मेट में सेव करना है, तो वो हमको देगा सेविंग। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोलेगा कि वुड यू लाइक टू टर्न ऑन। हाँ ठीक है, हम उसको टर्न ऑन कर देते हैं। और फिर ये हमारा क्या करेगा, एज एन XLS, ऊपर देखो अनटाइटल शीट डॉट XLSX आ गया है यहाँ ऊपर वाला। अब हमको यहाँ पे रीनेम करना है, तो ठीक है, आई विल गो फॉर द रीनेमिंग ऑफ द शीट, और हम यहाँ पर लिख देंगे डेमो और FYIT। ठीक है, हो गया, डन कर दिए। तो अब हम लोग की शीट का नाम क्या बन गया, डेमो FYIT। ठीक है, लाइक दिस वे वी कैन गो फॉर सेविंग एंड डूइंग। फिर और क्या है शेयर एंड एक्सपोर्ट में, प्रिंट। अभी ये ऑप्शन पे चलती है। ठीक है, हम लोग प्रिंट करें, अभी फोन में हम कहाँ से प्रिंटर लाएंगे, लेकिन देखो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। वो बाय डिफॉल्ट आपको प्रिंटर का ही ऑप्शन देगा। यहाँ पे सारे साइज है, तो लेटर की जगह आई कैन सेलेक्ट फॉर द A4 पेज। और अगर हमको चारों पेज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पहला पेज चाहिए, तो आई विल राइट ओवर हियर 1 एंड डन पे क्लिक कर देंगे। और फिर जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो सिर्फ पहला पेज। अभी हम बोलेंगे अरे पहले पेज पर तो कुछ है ही नहीं, चलो चलो दूसरा पेज। तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ दो सेकेंड और थर्ड पेज लेने गए, तो कैसे 2-3, तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड पेज हमको आएगा। दिख रहा है, ये येलो वाले सिंबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे इंटरनल स्टोरेज में पूछेगा कहाँ सेव करना है, हम बोलेंगे डाउनलोड में सेव कर दो, तो हमारे डाउनलोड में सेव हो गया फोन के। So these are the concept that we can go for sharing and thing. Make a copy, पूरी की पूरी शीट जो है उसकी कॉपी बन जाएगी। क्लियर? अब हम वापस आते हैं। This is the thing, देखो डेमो FYIT XLS आ चुका है। अगर चाहिए तो ये डॉट दे साइड के 3 एरो पे जाकर, सपोज अभी इसको तो डिलीट नहीं करेंगे, देखो ये अनटाइटल शीट है। ठीक है, ये हमने पहले जो भी अपन ने बनाया था वो है। तो ये हम जाएंगे और लास्ट वाले ऑप्शन में जाके इसको रिमूव कर देंगे, तो वो हमारे ड्राइव से निकल जाएगा। Is it clear to everyone? Coming to the chat box. I will stop sharing for a while and coming to the chat box. Now let me know. सारी चीजें समझ में आई? Which is your favorite part? चलो सब जन अपना अपना फेवरेट वाला पॉइंट लिखो कि कौन सा उनको सबसे अच्छा लगा पूरे शीट में। ओके, अनम को फॉर्मूला पसंद आया। अनम वेरी गुड, फास्टेस्ट वन टू रिप्लाई। हम मार्क कर रहे हैं। ओके, शी राइट व्हाट इज योर नेम डियर? अंसारी सोहेल। ओके फाइन, मल्टीपल शीट्स। अच्छा, इसको परसेंट, अच्छा ओके ठीक है, बता रहे परसेंटेज कैलकुलेटर का। थैंक यू, आई फॉरगॉट दैट थिंग। फिर मल्टीपल शीट्स, टेम्पलेट्स। अरे वाह भावना, सिद्धर भावना को सब रेडीमेड चाहिए, उसको टेम्पलेट पसंद आया। एक्सेल, मर्जिंग, मल्टीपल शीट्स, फॉर्मूला। ओके, द लास्ट थिंग वी हैव, आई हैव फॉरगॉटन, लेट्स शेयर माय स्क्रीन। ओके, चलो वी विल सी डेमो FY। अभी परसेंटेज कैसे निकालना है, राइट? तो हम लोग चलते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी कॉलम C एंड कॉलम D। ओके, पूरा पूरा नहीं कॉपी करेंगे, सिर्फ इतने मार्क्स लेते हैं हम, यहाँ से इतना कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी किया। ऊपर ये जो रेड वाला ग्रीन वाला है देखो 1123 के नीचे, वो राइट मार्क पे क्लिक किया, शीट 4 पर आए, फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक प्रेस करने के बाद पेस्ट, आ गया मार्क्स। अब थर्ड वाले में हम क्या लिखेंगे, सिंपली परसेंटेज का सिंबल लिख देते हैं। बहुत बेचारा गरीब दिख रहा है तो उसको अमीर बनाने के लिए बोल्ड, और उसको भी साइज 14 और उसको भी बीच में अरेंज कर दिया। राइट, नाउ फॉर्मूला, नाउ लुक हियर, सेल सेलेक्ट करें, सेकेंड टास्क इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, हम एक ब्रैकेट चूज करेंगे यहाँ पर, और दिस वैल्यू टोटल मार्क्स, सपोज सॉरी दिस वैल्यू डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला डाल दिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज दैट, देखो ये 20s वाले जो है ये बड़ा बड़ा नंबर है और ये छोटे छोटे नंबर्स है, तो इसके लिए थोड़ा सी टेंशन मत लो, वो ओवरऑल जो भी परसेंटेज उसको देना है वो दे ही देगा। तो व्हाट वी विल डू, ऑटो फिल। ओके, देखो
लुक हियर व्हाट वी आर हैविंग 21, 29, 158, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 65 वैल्यूज हो गई है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज दिस रैंडम असाइनमेंट, हम इसको क्लियर करते हैं और सब के अंदर देखो यहाँ रेड आ रहा है क्योंकि अभी इसको कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है ना इसके लिए, और सब के अंदर क्या कर देंगे 100 डाल देंगे, ठीक है। अब यही 100 को ऑटोफिल हो गया 100, ओके। लास्ट वाला वैल्यू इज हैविंग, देखो यहाँ पे आपको एरर भी बताएगा कि डिवाइड पैरामीटर टू कैन नॉट बी 0, ठीक है भाई, हम लोग ये 0 वाला हटा देते हैं आपसे, तो वी कैन रिमूव दिस थिंग एंड वी कैन एड इट अगेन। तो व्हाट वी कैन डू फॉर रिमूविंग, क्लियर, व्हाट वी कैन डू फॉर दिस थिंग। अच्छा, ये सेल सिलेक्शन फॉर्मूला सिलेक्शन में अगर हम लोग यहाँ पर आई हैव चूजन B3 की जगह B2 करती है, नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। फिर यहाँ पर आओ और ऑटोफिल, अच्छा आई हैव टू क्लियर द प्रीवियस सिलेक्शन, ऑटोफिल ऐसे नहीं लेता है, अगर पहले से वैल्यू है तो आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑटोफिल अप्लाई कर सकते हो। नाउ लुक हियर, ठीक है, अभी 20 में से 100 मार्क्स है तो उतना मार्क्स आने ना, आई विल डू द चेंजेस और इसको हम क्या कर देते हैं 50 कर देते हैं आउट ऑफ 50। तब यहाँ ये सारों को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद 50 वाले को क्या करेंगे ऑटोफिल। तो अब देखो नाउ यू विल गेट द परसेंटेज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। ये वाला आ रहा है प्रॉब्लम, ठीक है भाई तुम डिलीट हो जाओ, वी डोंट वांट यू टू अपीयर। लुक हियर, तो 20, 50 में से कितना मिला 20 मिला, तो कितना परसेंटेज हुआ 40। फिर इसको 50 में से 19 मिला तो उसका परसेंटेज हो गया 38, इसको 17 मिला तो इसका परसेंटेज हो गया 34। सो व्हाट, लुक हियर, जैसे ही हम ये वाले चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे फॉर्मूला बार में देखो A6, फिर उसके बाद B6, सॉरी ये वाला B6 एंड देन व्हाट आई एम हैविंग, तो A6 डिवाइड बाय B6 इनटू 100। तो आपका जो भी मार्क्स है दैट मीन्स आउट ऑफ जितना मिला है आउट ऑफ, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ 100। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। कमिंग टू द चैट बॉक्स, stop sharing my screen, coming to the this okay, now clear, समझ में आया टाइप, ओ गुड अनम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम अनम से ही पूछने वाले हैं ये तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सेल, 1.5 घंटे से हम लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं वो। So I hope all the thing is clear to everyone, सबको सब चीजें clear है। Now instead of AC, you have to send a emoji of thumbs up. चलो, who's going to send that quickly? The first one to send that emoji. अरे वाह 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 वाह, we are having so many responses here. Insha wins. Insha ने सबसे पहले reply किया। Okay, fine. Okay, good one, good one. Okay, now next. Send your favorite emoji. आपको जो इमोजी अच्छा लगता है ना वो शेयर करो। कौन सा अच्छा लगता है? ओके, वाओ, इंशा को ये वाला पसंद है। खुशी लाइक फ्लावर, ओके, अरीबा, अनाम, इफा, अरे वाह 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 वाह, हु इज दिस? रोशनी yes, okay. Oh, Aisha likes sandals. अच्छा, that means she like heels. Oh my God, Zainab, what you like? Okay, fine, good. Okay, would you like to ask any questions? कुछ question पूछना है? Yes or no? No? Oh, Misbah like cake. अच्छा, चलो ठीक है. Okay, shall we move to the next part? स्लाइड्स पर चले, ये सब एक्सेल के बारे में था। अच्छा चलो ठीक है, स्लाइड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, बहुत छोटा भी है, इतना बड़ा नहीं है एक्सेल के जैसा। विद इन अ शॉर्ट टाइम वी आर गोइंग टू फिनिश द थिंग इंशाल्लाह, ठीक है। चलो लेट्स सी अबाउट स्लाइड्स। ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? जस्ट रिप्लाई फास्ट, येस और नो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबको पता है, येस और नो? सबको पता है, ठीक है। अभी गूगल ने क्या किया है, वही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को उठा के अपने टर्म्स में ले लिया है और उसको नाम दिया है स्लाइड, ठीक है, गूगल स्लाइड्स। तो फॉर इंस्टॉलेशन वेयर यू हैव टू गो,
जैसे एक्सेल शीट का किए थे पूरा की पूरा सेम वैसा ही रहेगा। तो कहाँ जाओगे, प्ले स्टोर में जाओगे, क्या टाइप करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू टाइप, स्लाइड्स, एस आएगा, ठीक है, स्लाइड्स, वेरी गुड जैनब, यस अनम, गूगल स्लाइड भी लिखोगे तो आ जाएगा। ओके, विच स्लाइड, गूगल स्लाइड यू हैव टू चूज, कौन वाला चूज करना है? I think Kausar gave the right answer for the sheet. Yes, very good. LLC वाला, जहाँ LLC लिखा रहेगा that means वो Google का licensed copy वाला है. Good one. Okay, slides download हो गया. फिर अब हम लोग आते हैं, let me share my screen. हम जल्दी जल्दी बताएंगे quickly and then I will give you a task. ठीक है? So I'm sharing my screen. We will go. ओके, आई विल गो फॉर माई ऐप। ये आया स्लाइड का ऐप, देखो कैसा दिखता है। स्लाइड्स पे क्लिक किया, गूगल स्लाइड्स इज ओपनिंग। लेट मी रोटेट द थिंग, ठीक है। सेम जैसे शीट में था ऑप्शन, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 3 लाइन जैसा दिख रहा है, यहाँ पे वो सारी चीजें दिखाएगा। यहाँ ग्रीन में टी दिख रहा है, दैट मीन्स terinmomin@gmail.com से हमने लॉगिन किया हुआ है। फिर ये फोल्डर वाला है, ड्राइव से लेना है, डिवाइस से लेना है, सेम। फिर यहाँ पे ग्रिड व्यू एंड लिस्ट व्यू, देखो लिस्ट व्यू ये ऐसा आ रहा है, और फिर उसके बाद अगर हम ये क्लिक कर देंगे तो ऐसा लिस्ट जैसा आने लगेगा। गेटिंग? तो सेम वैसा ही है। फिर उसके बाद ये प्लस वाली साइन, बड़े वाले प्लस पे देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो क्विकली वी विल सी दिस थिंग्स। तो हम लोग पहले टेम्पलेट्स पे जाते हैं। टेम्पलेट्स पे देखो वी आर हैविंग एजुकेशन के इसमें, तो वी आर हैविंग लेसन प्लान, बुक, बहुत सारे ऐसा है। हाँ देखो, वर्क के इसमें पर्सनल और रेसिपी बुक वगैरह, पोर्टफोलियो बनाना है, विच एवर यू वांट यू कैन चूज द थिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह, इफ यू वांट टू डिजाइन यू कैन चूज द फॉर्मेट, देन वी कैन गो फॉर द वर्क, इफ यू गो फॉर, अच्छा हम लोग अभी आप चलते हैं पर्सनल पे और जनरल एजुकेशन वाला चूज करेंगे, सॉरी जनरल प्रेजेंटेशन। तो आई विल चूज दिस थिंग, लुक हियर। तो वो बना बनाया फॉर्मेट दे रहा है, हमको सिंगल टैप करना है, और देखो नीचे लिख के आ रहा है एडिट स्लाइड। तो आई विल क्लिक ऑन एडिट स्लाइड। इतने सारे स्लाइड फ्री फॉर्मेट में हमको बना के दे दिया। वो देखो कितने सारे हैं, वी आर हैविंग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, सारे स्लाइड, सबके पैटर्न, फिगर उगर डालना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे देखो ये फाइनल पॉइंट, इसको डबल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हमको फाइनल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं चाहिए, तो व्हाट आई विल राइट, I will write it as FYIT। हो गया सिंपल, ठीक है। तो लाइक दिस वे वी कैन डू, देखो ये FYIT की स्लाइड बन गई। तो बहुत सिंपल होता है, बस टेम्पलेट में जाना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट योर, आपको जहाँ पे भी चाहिए वो चीज को देखो, मूव टू फ्रंट, मूव टू बैक, डिलीट करना है तो हम डिलीट कर देते हैं। तो लाइक दिस वे कोई भी स्लाइड पकड़ो, अपने हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हो। सो दिस इज फॉर द टेम्पलेट वन। कमिंग बैक, now I don't want template, I want to create my own। तो what I will do, फिर से ये प्लस पे जाएंगे और थर्ड वाला जो है ना, न्यू स्लाइड फाइल्स, उस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम लोग न्यू स्लाइड फाइल्स पे गए, वी आर रेडी विथ अवर थिंग। हमको एक बाय डिफॉल्ट स्लाइड दे दिया। जल्दी से हम यहाँ पे डबल टैप टू ऐड टाइटल, देखो वो खुद ही बोल रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, डबल क्लिक एंड वी विल राइट ब्रिज कोर्स डेमो, राइट। फिर उसके बाद सब टाइटल में हम यहाँ लिख देते हैं FYIT, हो गया। तो दिस आर द टाइटल एंड सब टाइटल, ठीक है, ये दोनों हम लोग के रेडी हो गए। देन व्हाट वी कैन डू इज ऐड स्लाइड। तो लुक एट माय लेफ्ट कॉर्नर, 1 लिखा है और उसके नीचे सब प्लस बना हुआ है, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे। तो दीज आर द नंबर ऑफ फॉर्मेट इट इज गिविंग, कि हमको सिर्फ टाइटल देना है, हमको सेक्शन देना है, हमको कंटेंट वाला देना है। आई हैव टू टेक टाइटल एंड कॉलम। तो हमको जो भी सेलेक्ट करना है इसमें से हम ले लेते हैं। तो आई विल सेलेक्ट दिस वन, डबल टैप, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंटेंट, इंडेक्स जैसा जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि व्हाट वी हैव स्टडीड। तो वी हैव स्टडीड इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद वी हैव सीन इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद वी सी टेम्पलेट्स। तो जो भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट दिस थिंग, ठीक है, इतना काफी है। फिर एक और शीट हम ऐड करते हैं, दैट इज फॉर कॉलम।
तो देखो एक कॉलम में यहाँ पर हम लिखेंगे टीम टीम ए, ठीक है, और ये वाले को हम बना देंगे टीम बी। तो लाइक दिस वे यू कैन डू एंड सेलेक्ट द थिंग, और आपको जिस हिसाब से चेंजेस करना है आप उस वहां से ले लो, और यहाँ पे हम लिखेंगे गेम। तो टीम 1 हो गई, टीम बी हो गई और गेम हो गया, ठीक है। तो ये स्लाइड सिलेक्शन हुआ, इंसर्टिंग। अभी टेक्स्ट के साथ खेलती है, बहुत सादा सादा काला काला दिख रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द कलर। तो ये देखो सिंपली बेसिक टेक्स्ट कलर हम लोग चूज कर लिए। इफ आई वांट आई विल मेक इट बोल्ड, जैसा एक्सेल में था सेम वैसी है। एरियल की जगह हम लोग कॉमिक वाला ले लेते हैं। फिर 52 इज द साइज, तो आई कैन गो फॉर द 72। whatever changes you want you can do for the thing. if I want to do the highlighting, तो ये कैसे पूरा वर्ड जो लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हाईलाइटिंग भी हो गया। फिर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी ये जो कंटेंट है हमको इसको क्या करना है, बुलेट बनाना है। तो लुक हियर, नीचे देखो फोर्थ लास्ट ऑप्शन ऐसे डॉट है और स्लाइड ऐसे लाइन लाइन है पेन के डब्बे से पहले। तो आई क्लिक ओवर दिस, तो ये क्या बन गया, बुलेट पॉइंट्स। अगर आई हैव टू रिमूव दिस बुलेट पॉइंट्स तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, आई कैन मेक दिस एज अ बुलेट पॉइंट, ठीक है। फोर्थ वाला एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको निकाल देते हैं। तो कंटेंट रेडी हो गया। नाउ कंटेंट आई वांट टू बी इन अ सेंटर, तो सेम हम लोग ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे सेंटर। फिर आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ द कंटेंट, तो आई विल चेंज द कलर, आई विल चेंज द साइज। अभी देखो कंटेंट और ये इंस्टॉलेशन वाला जो लिखा हुआ है एकदम करीब करीब है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मूव दिस थिंग, थोड़ा सी ऊपर ले लिए, ये वाले कंटेंट को थोड़ा कम कर दिए, इसको उठा के थोड़ा सी नीचे ले लिए। तो दीज आर प्लेइंग विद द एलिमेंट, दीज आर नॉट टेक्स्ट बॉक्स, और ये सारी चीजों को एलिमेंट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर इसको आई वॉन्ट इट टू बी इन द मिड। तो देखो अगर हमको इसको नीचे चाहिए तो हमारे कहाँ जा रहे हैं। तो लाइक दिस वे वी कैन अरेंज ऑल द सेल्स एंड द कंटेंट, ठीक है। सी दीज आर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अभी यहाँ थर्ड पे आते हैं, टीम ए पे आते हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू डू ओवर हियर इज दैट आई विल ऐड, तो ये प्लस वाली साइन ऊपर दिख रही है, प्लस पे जाओगे। अब आप कमेंट ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट, इमेज, शेप्स एंड ऑल। तो टीम ए में आई विल ऐड इमेज फ्रॉम फोटोज और फ्रॉम कैमरास, क्योंकि हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो इट विल आस्क मी फ्रॉम द फोटोज एंड फ्रॉम द कैमरास, ठीक है। देखो इतने सारे हैं, आई विल चूज दिस इमेज। इतनी बड़ी इमेज आ गई, हमारे को तो कॉलम ए में चाहिए था, तो आई विल जस्ट क्लिक पुट इट हियर, ड्रैग करके लाएंगे, उसको छोटा बनाएंगे, उसको उठाकर जहां चाहिए वो हिसाब से। सिर्फ आपको क्या करना है, पकड़ के रखना है, ड्रैग करते जाना है, ठीक है। आप वो इमेज को दबा के रखो और कहीं पे भी घुमाते रहो, पूरे इसमें जहां पे डालना है वहां डाल दो। चलो टीम बी में डाल दिए। तो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू फॉर द चेंजेस एंड द कंटेंट, ठीक है। अभी टीम ए में आई वांट, फिर प्लस साइन पे जाएंगे, अभी हमको शेप चाहिए, तो आई विल चूज शेप। कैसा शेप चाहिए, तो आई विल सेलेक्ट, चलो सर्कल, तो आ गया सर्कल। उसको ड्रैग करके लाके यहाँ ड्रॉप किया, डबल क्लिक किया, एंड आई विल राइट ओवर हियर कैरम प्लेयर, ठीक है। तो वट एवर नेम शेप के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी कैरम प्लेयर्स बहुत ऐसे छोटू छोटू सा दिख रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अरेंज इट इन द सेंटर, आई विल इंक्रीज द फॉन्ट, फिर उसके बाद आई विल चेंज द कलर। बार बार यही कलर आ रहा है, चलो ये गंदा वाला ले लेते हैं। देन अभी आई वांट दिस बैकग्राउंड, कैरम कलर, कैरम प्लेयर इज इन पिंक, the background is gray, so I will change the background from here। एकदम नीचे देखो लास्ट थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे पेंट वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाकर कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। It's very, so we can go for the another colors and we can choose this thing. We can go for here also. So whichever color you want, whichever design you want, you can use the thing. ओके, द नेक्स्ट थिंग, अभी ये इतना हो गया। अभी हम फिर से प्लस ऑप्शन पे जाएंगे, उसी तरीके से हम लाइन ऐड कर सकते हैं, बेसिक लाइन, एल्डेड कर्व लाइन। तो बेसिक लाइन, तो देखो बेसिक लाइन इस तरह से आ गई। इफ यू वांट दिस लाइन टू मूव, तो आप उसको मूव कर दो, इस तरह से घुमा दो। तो वट एवर यू वांट टू डू यू कैन पुट इट ओवर हियर। छोटा बड़ा करना है तो ठीक है, छोटा कर देते हैं। ओनली जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ द थिंग यू आर गोइंग टू लुक द चेंजेस।
अब ये लाइन को मोटा करना है तो व्हाट वी विल डू, इसको बढ़ा देंगे। देखो लाइट वेटेड है ना, तो ये क्या हो गई, लाइन मोटी हो गई। कहाँ से आया, तो लाइन यहाँ क्लिक किए और ये जो सेकेंड ऑप्शन है इस तरह से एकदम नीचे देखो, एकदम लास्ट का लास्ट में 5 ऑप्शंस है, तो वी कैन आई हैव यूजिंग दिस थिंग, बॉर्डर वाली लाइन चाहिए, डैश वाली लाइन चाहिए, ठीक है, आई वांट दिस थिंग, तो वो उस तरह से चेंज हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन चेंज द कलर, तो यहाँ पर आके हम लोग उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस वे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू प्ले विद द थिंग। इफ यू वांट तो आप एरो बना दो, ठीक है, चलो एरो भी बना दिया हम लोगों ने। तो दीज आर द नंबर ऑफ थिंग्स एंड द शेप्स वी कैन गो फॉर द थिंग। अभी हमारी स्लाइड कुछ खाली खाली दिख रही है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो एट द राइट कॉर्नर एंड आई विल गो फॉर चेंज थीम। ठीक है, अब इसमें से हमको जो भी थीम पसंद आ रही है हम वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस ब्लैक वाला। तो थोड़ा सा इट विल टेक टाइम एंड देखो अभी पूरा कंटेंट हमको इसमें मिल जाएगा, ब्रिज कोर्स, फिर उसके बाद ये सेकेंड वाला स्लाइड, फिर दिस इज अवर थर्ड स्लाइड। तो बेस्ड ऑन द थीम वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज अवर बैकग्राउंड। अच्छा ये थीम पसंद नहीं आई तो ठीक है, हम लोग फिर से जाएंगे चेंज थीम में और हम लोग कोई लाइट वाली थीम ले लेते हैं। फिर वो बोलेगा दो देखो लाइक दिस वे इट इज गोइंग टू अपीयर, फिर ये सेकेंड आया, थर्ड, अगेन सेकेंड स्लाइड इज वेरी एम्प्टी, आई विल अगेन चेंज द थीम। तो आपको जितनी बार चाहिए आप उतनी बार चेंज कर सकते हो, जो सा थीम पसंद है आप वो वाला थीम ले लो। तो लाइक दिस वे इट इज गोइंग टू अपीयर, द फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज एंड देन थर्ड। So these are the themes from which you can change the background. Clear है? Okay, now look here. अभी I want the image वाली slide to be at the second position. अच्छा इसी को हम कॉपी करना है, तो what I will do, ये स्लाइड के ऊपर थोड़ा सी प्रेस करके रखोगे तो ऊपर देखो ऑप्शन आता है, कैंची बनी हुई है, that means cut. This arrow, the second symbol is for copy. So I will copy the thing and then I will come back और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी को उठाकर पेस्ट कर देंगे। तो देखो दो स्लाइड आ गए, स्लाइड 3 भी वही है, स्लाइड 4 भी वही है। वी आर हैविंग दिस इज एज अवर्स द स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 एंड अगेन स्लाइड 4। तो दिस इज द कॉपी। अभी मूव करना है तो स्लाइड 4 को पकड़ के हम देखो ऊपर ड्रैग कर रहे हैं, लुक इन द लेफ्ट कॉर्नर, दिख रहे हैं घूमते हुए, तो ये हम उसको सेकेंड पोजिशन पे डाल दिए। तो दिस इज माई स्लाइड 1, स्लाइड 2 पे ये कैरम वाला आया, फिर कंटेंट आया, फिर कैरम वाला आया। इफ आई वांट कंटेंट टू बी एट द फर्स्ट, तो व्हाट आई विल डू, उसको थोड़ा सी दबा के रखना है और यहाँ से ऊपर उठा के लेकर जाना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, तो सबसे पहले आ गया कंटेंट, फिर आ गया ब्रिज कोर्स, फिर आ गया कैरम, फिर आ गया कैरम। अब कैरम इज रिपीटिंग, तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस दिस थिंग, वही स्लाइड वाले को प्रेस करोगे देखो उसका सिलेक्शन ऑरेंज जैसा हो जाता है और यहाँ पर आना है डिलीट, तो वो आपकी फर्स्ट स्लाइड जो है वो डिलीट हो गई। तो दीज आर द नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म। यहाँ पर 3 डॉट है, सेम हम लोग यहाँ पर शेयर एंड एक्सपोर्ट वाला है, जिस तरह से हम लोग का एक्सेल में था वही सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो यू कैन डू दिस थिंग एंड यू कैन गो फॉर द अच्छा अगर आपको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू के लिए क्या करोगे, ये व्हाइट ये जो सिंबल है ना, एरो बना हुआ है एकदम 1143 के नीचे देखो एक बैक एरो है, वो बैक एरो पे प्रेस करो तो आपको बता देगा दिस इज द प्रीव्यू। फिर से आपको अगर आपको प्रेजेंट करना है तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल वाला उसके ऊपर क्लिक किए, प्रेजेंट ऑन दिस स्लाइड, प्रेजेंट टू अ मीटिंग, प्रेजेंट टू अ शेड्यूल मीटिंग, तो आई विल क्लिक प्रेजेंट टू दिस डिवाइस। तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा लोड करने के लिए और फिर हमको यहाँ पर प्रेजेंट करके देगा। ठीक है, देखो this will start, so if I want I can go for the next part, देखो like this way। तो आप इस तरह से प्रेजेंट भी कर सकते हो, इवन हम लोग मीट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं ये चीज को। अभी आते हैं नेक्स्ट थिंग, अनटाइटल। देखो आई एम हैविंग जनरल प्रेजेंटेशन, ये वाली स्लाइड एंड सॉरी, और ये है। अब ये इसके 3 डॉट पे जाके हम यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो आई विल गो टू द रीनेम ऑप्शन और आई विल राइट FYIT डेमो एंड ब्रिज कोर्स। ठीक है, रीनेम हो गया। लुक हियर, अब हमारे फोल्डर में इसका नाम आ गया FYIT डेमो ब्रिज कोर्स। नाउ दिस अनटाइटल्ड वाला
if I have to remove certain thing या have to delete certain thing, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके और इसको पकड़ के डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया. तो देखो, these are the number of slides that I have created, student certificate, CC, PP1 and all those things. तो इस तरह से आपके ड्राइव में ये स्टोर होते जाएगा.